Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 29th May, 9:15 p.m. and today we are back again with the Bank Nifty's market analysis outlook and expectations for tomorrow, right? Tomorrow will be, I think, Nifty 50's, tomorrow is Thursday. Nifty 50's expiry will be there, right? So we have to be cautious on the index, right? Because last Thursday also what happened, right? It was, I think, Thursday, and the market shot up like crazily. Okay, so we need to be careful on the upside, right? So we'll discuss what setups we gave in today's Telegram group, and what do we expect from Bank Nifty tomorrow, right? So let's trade. Go to the charts, right? Before discussing anything. Okay, so these are the charts and these are the levels. Yesterday we marked, right, and if you see, the market opened gap down, right? So we marked a level of 48,984, and yesterday we had a discussion that if the markets open flat to gap down, so one move can come towards 48,980, but eventually the market opened gap down below 48,980, right? So yesterday we discussed that only. Okay, and then the first support, if you so precisely, if you see, right, the first support after opening gap down, market made a first candlestick, right? The first support it took exactly from this green zone, even the upper line which is marked in the green zone, right? So first support it took, and if you go in 15 minutes, right, if you come to our Telegram group and if you'll check, right, what exactly we mentioned is we marked the first 15-minute candlestick, and I exactly mentioned if this breaks, if this range or if this candlestick's low is broken, you can go short. So the moment this candlestick broke, right, I mean, this candlestick broke the low of this 15-minute candlestick, bearish trend started, right? So we gave a trade here. I think that trade is, I'll make you see that trade is this one, Bank Nifty 48,800 PE. This was a hero zero because today was Bank Nifty's monthly expiry, right? So we gave it around level of 100 and 115. If you come to our Telegram group, you'll see, right? So we gave it at around levels of 115, I think 120, and it moved towards 350. It ended at 300. So 1 is 2, and I think we gave a stop loss of around 40, and we trailed the stop loss, right? And it was a perfect trade given at the perfect movement, right? And we initially we were not getting the momentum, and like if another candle would have closed like this, like doji, right, I would have exited the trade, because in option buying, if you are doing a hero zero, you need momentum increases the option price if you are in buying, right? So as soon as I gave a put here, this candlestick came and the premium shot towards, I think, the level of 150, 160, and after that the market was comfortably staying below 5 EMA, 15-minute 5 EMA, and once it tried to go up, but since our green zone which we marked yesterday was also broken by this candlestick, right? So it became a resistance, and so perfectly our levels worked on the downside, right, on the upside we discussed, but since it was a gap down, so all the people who were long here, right, they exited, right? So this was today's discussion, today's happenings in the market, right, what we discussed yesterday and how it performed, right? So let's discuss what do we expect from market tomorrow. So I'll clear all these drawings, right? Once I'll go to the draw tool and I'll clear all these drawings so that you get a clarity. So first we'll go to first daily time frame. See, if you are a regular viewer and you remember, uh, I clearly mentioned that this up rally is not justified. Even this up rally was not justified, but actually what happened is from here market took a pause for 3 days, so I was expecting this kind of candlestick, then again red, but again green. So this kind of movement was actually much more justified because market was taking pause, but market gave continuously two closes below previous day low. This was a close below previous day low, this was a close below previous day low. So how come this move happened? This move happened because of gap up. What happens is the traders who who added shorts in all these 2 days, right, these two candlesticks, who added shorts, they got badly trapped on the gap up and they panicked and they exit, and this candlestick was a short covering candlestick, not a buying candlestick. This was short covering, this was momentum, and market also tried to go
third day, but sellers came from this level and it dragged the market down from they are dragging the market down from past 2 days, right? तो सिंपल हमने देखो यही डिस्कशन किया था कि अगर ये मैंने ये पूरी अप्रैली बाय नहीं की थी, आपको भी पता है, अगर आप एक इफ यू आर अ न्यू व्यूअर कम टू अ टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट टू नो दैट वी नेवर पार्टिसिपेटेड इन बैंक निफ्टी इन दिस अप रैली, बिकॉज ये मेरे को नहीं लगी जस्टिफाइड, राइट? मैंने सिर्फ इस रैली में, और मैंने यहाँ बोला था कि अगर ये रैली करेक्ट हुई तो बहुत स्टीप करेक्शन आएगा, और वो ही चल रहा है, राइट? तो अब एक बार देख लेते हैं। देखो अब मार्केट ने दे दिया है प्रीवियस डे लो के नीचे, एंड द मार्केट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग, और ये इसको मैं बेरिश कैंडल ही बोलूँगा। प्रीवियस डे लो के नीचे भी है एंड 5 EMA के नीचे भी है। लास्ट जब 5 EMA के नीचे क्लोज हुआ था ये देखो, तो 20 EMA तक उसने अपना पाथ ट्रैवल किया था, इवन 50 EMA तक चला गया था मार्केट। आई थिंक मार्केट ट्रैवल टिल 100 EMA, राइट? सो नाउ फर्स्ट टारगेट विल बी, if markets open flattish to little bit gap down, the first logical target would be 48,300, right? Markets can try to take support at 48,300. We'll see, we'll have a look at OI, right? We'll see that where is the best support. But for tomorrow, since the market has given on daily time frame a close below 5 EMA, my first logical target would be 20 EMA, right? If 20 EMA is also broken and it's crossed, so tomorrow itself we can see a move towards 50 EMA, which is I think 48,000, right? On the upside, only and only we have to go bullish, we have to take a bullish trade, we have to wait until unless the previous day high gets taken out, right? So this was a daily discussion. Let's go to once 1 hour candlesticks, right? So in 1 hour the story is little bit different. See, that's how actually the markets play out, right? In 1 hour the markets the candlestick story is little bit different. I'll tell you why. If you carefully observe, we have seen a down rally, right? But early, right, the market is going down but not with fierce movement, right? We saw a good move down movement here, we saw good down movement here, but the markets went down, यहाँ पे नीचे गए बट फिर बाहर ऊपर लेके आ गए, यहाँ पे नीचे गए बट फिर थोड़े से बाहर ऊपर लेके आ गए। तो इतनी सारी आप देखो आर्ली में डोजी बन रहा है, तो इसका मतलब है कि बायर्स आ रहे हैं लोअर लेवल पे। एंड अगर प्रीवियस देखो अब, क्योंकि क्या है कि एक भी कैंडलस्टिक प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रही है, सो आर्ली में कल आपको क्या ध्यान रखना है, एक भी कैंडलस्टिक अगर प्रीवियस आर्ली कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोज हो जाती है, देखो ये भी प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है, बट हाई के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट होता है, ये बात याद रखना। तो नाउ ओपनिंग कैंडल बैंक निफ्टी में कल के दिन मेरे हिसाब से क्रूशल रहेगा, क्योंकि अगर जो कल अगर मार्केट जब खुलता है, जो 9:15 से 10:15 वाली कैंडल स्टिक होती है, दैट इज़ वेरी क्रूशियल इफ द कैंडल क्लोजेस अबव 48,600, so we can expect an up movement towards the level of 48,750 first movement, and if 48,750 is also crossed, this whole movement can come, right? This all movement can come in short covering, and we can see a movement of kind of like this, right? Let me just take doodle, right? Like this, like this, right? So market can give a movement like this if only and only if early candlestick closes above prior early candlestick high, right? So that's the only condition. But on this I am talking about, why I am talking about little bit bullish bias, because if you see, right, if you zoom out a little bit, right, so we have been seeing a selling from a like I think from past 20 hours, or you can say 2 days, right? So market has to give a pullback. If the markets are still bearish, markets will give pullback till this level 49,000. 49,000 will be a good point to short the markets positionally again, and we can see a continuation here. But now at this point, if you see early, I think for me the selling is saturated. Saturated, by saturated I mean the selling, the markets, in the market the selling is kind of absorbed by buyers, right? And if the buyers tomorrow are able to they are able to take the markets, the prices above prior high early high candlestick, so we can see a short covering, right? So we'll go to 5 minutes straight to discuss a proper strategy for intraday, right? अर्ली मैंने आपको बता दिया, अगर क्योंकि अर्ली में देखो क्या होता है, थोड़ा आपको लंबा पर्सपेक्टिव मिलता है। आप 5 मिनट्स में ट्रेड करोगे, आपने लेट्स सपोज आपको 50-60 पॉइंट की ट्रेड चाहिए, आपने मान लो लेट्स सपोज आपने 5 मिनट्स में कैसे ट्रेड करोगे, आपने
इस अप मूव पे यहाँ शॉर्ट किया और आप यहाँ निकल गए, दिस इज अ 5 मिनट ट्रेड। बट आर्ली ट्रेड कैसा होता है, आपने यहाँ शॉर्ट किया और आप यहाँ एग्जिट कर रहे हो। सो आर्ली में जो आपको मूवमेंट्स मिलते हैं वो बड़े और थोड़े से स्मूथ मूवमेंट्स मिलते हैं, राइट। सो 5 मिनट्स में देखो हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, जो हमारा ऑलरेडी रिचुअल है, वील गो टू डेली टाइम फ्रेम, वील मार्क आर डे हाई एंड डे लो, राइट। सिंस अब ये देखो कल भी हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर डे हाई और डे लो नहीं निकलता और इसी के अंदर ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अपर लेवल है एंड आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके ये रैली कंटिन्यू कर दे। बट गैप डाउन और गैप अप हमेशा मार्केट्स को खराब करते हैं। गैप डाउन ही हो गया प्रीवियस डे लो के नीचे, तो फिर बायर्स क्या कर लेंगे, उनको गिव अप करना ही पड़ेगा, और बायर्स ने गिव अप कर दिया। बट आज नीचे से बायर्स आए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, लेट्स मार्क आर डे हाई एंड डे लो विच इज़ वेरी क्रूशियल, राइट। तो पहला स्ट्रैटेजी देखो यही रहता है कि डे हाई के ऊपर निकल रहा है, आंख बंद करके कॉल बाय करो, 150-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो, ट्रेंडिंग चलता जाएगा। सेम गोज फॉर योर डे लो, राइट। सो कमिंग बैक टू 5 मिनट्स, राइट नाउ, मैं पहले डाउन साइड की बात कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रेंड बेरिश है, बट आर्ली में मेरा थोड़ा बायस बुलिश की तरफ बन रहा है। सो ऑन द अप साइड, अगर पहला तो आप देख लेना आर्ली का अप साइड निकल रहा है, बट 5 मिनट्स में अगर ये लेवल निकालता है मार्केट, आपको सिर्फ कुछ नहीं है 48,700 का ध्यान रखना है। अगर मार्केट 48,700 निकालता है तो पहला मूवमेंट आपको मिल सकता है, आप ये मान लो 48,900 तक का मूवमेंट मिल सकता है। देखो ये जो रेजिस्टेंस था ना, मार्केट ने ये तोड़ा था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था। हाँ ये ठीक है, ये सही लेवल है एकदम। अगर मार्केट 48,700 को तोड़ता है तो पहला मूवमेंट आपको मिलेगा यहाँ तक, क्योंकि ये एक हमारा सप्लाई जोन था, ये स्विंग हाई था। तो 48,800 तक, 48,800 और ये हमारा 200 EMA भी ऑन द अपसाइड। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार जा सकता है, अगर फ्लैट खुलता है या हल्का सा गैप अप खुलता है, राइट, तो मार्केट एक ट्रैजेक्टरी अपनी यूं कर सकता है, और मोमेंटम जब आता है तो मार्केट एक ये चीज़ कवर कर सकता है, करेक्ट। अब यहाँ पे मार्केट को डिसीजन लेना होगा कि मुझे वापस नीचे आना है या मेरे को जाना है, क्योंकि 49,000 पे हैवी कॉल राइटिंग है। आज तो थी, मैं एक बार डेटा देख लेंगे अब, क्योंकि मंथली हो चुका है तो 5 जून का डेटा देखना पड़ेगा एक्सपायरी का, राइट। सो एक ये हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट होके हल्का सा 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट को सिर्फ 48,400 को ब्रेक करना है। अगर मार्केट ऑन द डाउन साइड, इफ मार्केट ब्रेक्स 48,400, सो वील go to 15 minutes once, and I think after 4800 market can come towards this level, right। फर्स्ट 48,400 का 48,250 आ जाएगा, 48,250 टूटता है तो 48,000 आ जाएगा क्लियर। एंड if 48,000 ऑल्सो ब्रोकन, आई थिंक उसके बाद कोई लेवल नहीं है, 47,500 ही मुझे दिख रहा है, क्योंकि 48,000 तोड़ेगा तो 47,750 भी कोई, आई डोंट थिंक सो कोई लेवल बन रहा है, नहीं। तो सिर्फ अगर 48,000 टूटता है, सीधा 500 पॉइंट का स्ट्रेट आपको फॉल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका लेवल्स के बेसिस पे। अब अगर देखो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खोल दे, बहुत बड़ा गैप डाउन खोल दे, अगर सीधा मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खोलता है तो आपको 48,250 तक का गैप डाउन मिल सकता है, जो कि प्राइस एक्शन मतलब, अब गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है, हाथ से प्रॉफिट चल जाता है, ये बात याद रखना। तो अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुलता है तो हमको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, और फिर ये अच्छी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर अ मूवमेंट लाइक दिस, राइट। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो आज जितने भी पिछले 2 दिन से लोगों ने शॉर्ट किया सब फंस जाएंगे, एंड मार्केट साइडवेज टू वॉलेटाइल कर सकता है। एंड अगर मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दी कल, देखो ओवाई डेटा इतना एग्रेसिव नहीं बना कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, करेक्ट। बट अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है 100, 150, 200 पॉइंट, 48,750 क्रूशियल लेवल रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 49,000 आ सकता है। 49,000 के ऊपर अगर आप देखो तो वो ये फिर कहानी जो कल हमने डिस्कस की थी, 49,000 के ऊपर आपका पहला लेवल आएगा 49,250, 49,250 के ऊपर 49,500, एंड ऑन द अपसाइड 49,750, ये वाला लेवल आ जाएगा, राइट। तो ये पूरी कल की इंट्राडे स्ट्रैटेजी थी। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो। मैं आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो थोड़ा ट्रेड करने में, राइट। तो ये देखो, ये हैं आपके लिए कल के लिए कुछ लेवल्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है कि ये लेवल्स कैसे, ये जोन्स कैसे ट्रेड करने होते हैं, राइट। अब देखो डेली में एक बार वापस चलते हैं एंड मैं आपको एक चीज़ पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे लिए जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड हो गया ना, फॉर मी इट इज़ नाउ सेल ऑन राइज। बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज, कोई भी राइज आता है आप सेल करते रहो जब तक, देखो अर्ली में भी राइज आएगा, इस रैली का आप फिबोनाची से 50% लगाना, जो 49,000 होगा इस रैली का 50%, 49,000 वुड बी अ गुड जोन।
बट मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ रेकमेंड नहीं करूँगा कि शॉर्ट करो। अगर गैप डाउन खुलता है तो शॉर्ट कर देना इन लेवल्स के लिए, बट फ्लैट टू लिटिल बिट गैप खुलता है पक्का मार्केट, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट ये देगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं अगर वो अर्ली में देख रहे होंगे उनके पास कन्विक्शन नहीं है। सो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग दे विल एग्जिट द शॉर्ट्स एंड मार्केट कैन गिव अ मूवमेंट टुवर्ड्स 49,000। 49,000 अगेन विल बी अ सप्लाई जोन, तो मार्केट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड अगेन कम बैक डाउन हियर, राइट। सो अब मेरे लिए बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है कब तक, जब तक मार्केट बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं देता, विच इज 49,000। जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं देता तब तक सेल ऑन राइज रहेगा, सेल ऑन राइज टू फ्लैटिश, आई मीन टू साइडवेज, राइट। तो एक बार गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी 21 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत फ्लैटिश टू डाउन साइड ही खुले। तो इसके हिसाब से जो अभी मिल रहा है तो आपको सिर्फ नीचे 48,400 आपको टेक केयर करना है। अगर वो लेवल निकालता है जो प्रीवियस डे लो है तो मार्केट फिर एक कल डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मूवमेंट दे देगा। एक बार ओआई का फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं कि आज ओआई ने क्या किया है, ठीक है। तो 29 में तो हो गया, अब आज 5th जून पे चलते हैं सीधा। तो अगर आप 5th जून का ओआई चेंज देखोगे तो आज अगर आप टोटल ये देखोगे साइडवेज ही है, वही बोल रहा हूँ, साइडवेज नेगेटिव, लिटिल नेगेटिव बायस। 14 लाख कॉल राइटिंग ऐड हुई है और 13.7 करीब करीब पुट राइटिंग ऐड हुई है। तो मेजर सपोर्ट अभी क्या दिख रहा है देखो 48,400, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 48,400 बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर 48,350 के नीचे सस्टेन करने लगा तो 48,400 वाले पुट राइटर्स पैनिक करेंगे, वेर एज 48,400 पे कॉल राइटिंग भी इक्वल है, तो ये स्ट्रैंगल राइट करके गए हैं, मतलब 48,400 का कॉल पुट दोनों बेच के गए हैं। तो कल के लिए ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 48,400 के आसपास रह सकता है। तो डेटा देख के ये लग रहा है कि कल हो सकता है एक पॉज का दिन हो या ऊपर नीचे साइडवेज करे। और ऊपर जाओगे 4500 पे स्टीप रेजिस्टेंस है। अगर 48,500 निकालता है मतलब 550 560 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स, तो ये वाले कॉल राइटर्स पैनिक करेंगे और एक अप मूवमेंट आपको मिल सकता है। डाउन साइड पे मेरे को 48 अगर 400 टूटा और 350 पे अगर मार्केट सस्टेन किया तो मेरे को 348,000 तक कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा सीधा। अगर 48,400 क्रॉस होता है 350 के नीचे सस्टेन होता है तो ये वाले कॉल राइटर्स पुट राइटर्स सारे पैनिक करेंगे एंड सीधा एक मूव मिलेगा आपको 48,000 तक। इसलिए चार्ट पे भी यही दिख रहा है, चार्ट पे भी ये दिख रहा है कि अगर 48,000, और देखो डेटा भी ऐसा ही बना है चार्ट पे जो दिख रहा है ना, देखो 48,400 48,400 के नीचे अगर टूटा तो किसी ने सपोर्ट नहीं बनाया यहाँ पे, सीधा सबने बनाया 48,000 पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये रैली ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी। देखो चार्ट्स और डेटा कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे एनालिसिस। ट्रेडर्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर लीव अ लाइक, इफ़ यू आर समवन न्यू हु हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स ट्रेडर्स, बी सेफ इन द मार्केट्स।